My journey of more than 20 years as a healthcare professional, I witnessed a lot of changes, and I saw how science has evolved in last 20 years. But still, when I see patient, when I advise them, there is always a big divide. What we advise to them and what they perceive out of that. Sometimes they have a preconceived notion about the disease because they have their own diagnosis in their mind, or sometimes they Google the symptom and then they navigate Google and they have their own opinion regarding, because whatever line they have read there, that become their permanent. They feel they are knowledgeable about the subject. Mm. There is a very big divide, and that is why we are successful for the acute treatment like cough, cold, fever, and vomiting, and minor illnesses, or just acute illness, seizure disorder, but just for a day or two, and thereafter as symptom controls, and parents they start thinking themselves, and they modify the treatment plan. So with this platform, because I thought as a this is my greater purpose of life to educate everybody here, and when I go abroad and I see people in developed countries, their mindset is entirely different what we are having here. So I thought I should I should remove this divide, and but this cannot be done one is to one. And in this journey, I met Deepman, and he provided me this such a beautiful platform where we are inviting experts from various fields and taking advantage of their knowledge for the people. Yeah. So those who have joined us, those who have attending the session first time, so we are doing this webinar under the heading of cover page story, and today is the ninth seminar of that series. And today I'm feeling lucky to have Dr. Anshu Jindal with us. She's an expert IVF specialist, and IVF is as such. Before I thought of talking to her about IVF, I have to read IVF because I am also not being a doctor also, and being neonatal pediatrician. Even I was not very much aware about IVF. Mm. So I need to read little bit because otherwise I don't know what I will talk to her. So Yeah. me, because I am practicing for last more than 20 years. So you can guess what about people, Yeah. what they know about this subject, and it is such an important subject. There are few families or few couple those who have to have their first child, or there are few families, those few couple those who are looking forward one more sibling to their only child. Yeah. Some couples those who are in their early 20s, or some those who are late in the journey, Yeah. they need IVF. With this background, and I can stress this to all of you, IVF is a very vast topic, and this what we are trying to give you a bird's eye view about the IVF. And with the help of Dr. Anshu Jindal, I will try to clear many myths about the IVF and the success story of IVF. And you can use chat box to push your queries, and we will be more than happy to answer your queries in the last part of the seminar. Now, without further ado, I will uh, transfer this baton to Dr. Anshu Jindal. Dr. Anshu Jindal, please tell us what is IVF. Yeah. आईवीएफ गर्भधारण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अंडों को और स्पर्म्स दोनों को बाहर लैब में विकसित करते हैं, उन दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चेदानी में रख देते हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। तो जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बाहर लैब में की जाती है, और उसके बाद एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। Your session has ended. Right, Okay. right. There are few people they want Can we you, should talk English, and so we will be talking in English and Hindi together. So, Dr. Yeah. Anshu,
एग्स एंड स्पर्म्स ही कहाँ से आते हैं? हाउ डू यू रिट्राइव दीज एग्स एंड स्पर्म्स? या सो जो एग्स लिए जाते हैं, अगर लेडी जो विमेन है उसकी एज 40 से कम है, और कोशिश यही की जाती है कि हम विमेन के ही एग्स लें। अगर उसकी एज ज्यादा है, उसको मिनोपॉज आ गया है, उसके अंडा बनने की प्रक्रिया खत्म हो गई है, जो मिनोपॉज पे हो जाती है, उस स्थिति में हम एग्स बाहर से लेते हैं। नॉर्मल आईवीएफ में अंडे पेशेंट की लिए जाते हैं, लाइक ए वुमन के लिए जाते हैं, और स्पर्म्स हस्बैंड के लिए जाते हैं। Only if the eggs and the sperms are not there for some reason, like if the age of the woman is more than 40 or she stopped producing egg because of premature ovarian failure, तब उनकी कंसेंट से बाहर से अंडे लिए जा सकते हैं। और उसी तरह से अगर मेल्स में भी उन्हीं के स्पर्म्स लिए जाते हैं। और आजकल तो आईवीएफ की विधि इतनी एडवांस हो गई है कि हम अंडे अगर स्पर्म्स अगर सीमन में भी नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें हम बाहर अंडकोश से, विच मीन्स टेस्टिस से या एपिडिडिमिस से भी ले सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मेल्स कैन हैव देयर ओन बेबी विद देयर ओन स्पर्म्स। यहां तक ये तकनीक एडवांस कर चुकी है डॉक्टर अनुज। Okay. So you have told us if lady is less than 40-year-old, then you are going to take the egg of that the same female. Absolutely, yeah. They are the male, those who are not who are having whose Azoospermia, oligospermia, हाँ. Their sperm count is very less. Even if you find they are having good amount of sperm or adequate sperm in testes or epididymis, then you will take sample from there and you will give them genetically their child. Yeah, absolutely. Absolutely. We will give them genetically their own child. So azoospermic means no sperms in the semen, but there can be sperms in the testes or in the epididymis. So we take the sperms from there. This procedure is an advanced way of IVF and it is called micro-TSA, TISA, PISA. इसके अलग-अलग There are different names. Dr. Jindal. Stable. Yes, ma'am, we can hear. Can you hear me, Dr. Anuj? Yeah. Now I can hear you. Yeah. So when a patient who is having azoospermia means उसको कोई sperm उसके जो semen में कोई sperm है ही नहीं. So how we will decide to go for this advanced procedure? Yeah. What are the indicator where will you go for these advanced procedures? Right. So we take a testicular biopsy and look for sperms in the testes. And if we find that there are sperms in the testes or in the epididymis, then we tell the patient that we will harvest your own sperms and we will take the sperms at the time of IVF. Those sperms can be frozen also, जो हम लेके रखते हैं, but sometimes they might not, withstand the freeze thaw process. So उसमें उनको बता दिया जाता है कि अगर हम फ्रीज करके आपके स्पर्म्स रख रहे हैं, अगर उस वक्त वही काम ले सकते हैं, अगर वो काम अगर नहीं हमें स्पर्म्स मिलते तो हमें दोबारा भी सैंपल आपका लेना पड़ सकता है. Only in very rare cases that we cannot extract the sperms on the day of ovum pickup from. In that case, the patient has to give consent. The husband has to give consent for either donor sperm or for cancelling the cycle, as the case may be. Okay. क्या जो टेस्टिकुलर बायोप्सी आप लोग लेते हैं उसके लिए क्या एडमिट करना होता है क्या मेल को? नहीं, it's an OPD procedure. It's not a very long procedure. It requires a short anesthesia, and within 3 to 4 hours, the patient can go back home. So it's not a very long procedure. Normally हम क्या करते हैं, जिस दिन हम एग निकालते हैं, ओवम पिकअप जिस दिन करते हैं, उसी दिन हम sperm retrieval from either the epididymis या testicular sperms करते हैं. We have a very expert andrologist with us, Dr. Sunil. So he is looking after that aspect of IVF. Right. Means जो male है, he can go to office next day easily with this procedure. Hello. Yeah. Can you hear me? Now I can hear you. Yeah. तो इस प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट डे जो मेल है वो अगले दिन वो अपने ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं. Absolutely, yeah. It's a minor procedure.
कपड़े वगैरह पहनने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता डॉक्टर अनुष्का। बायोप्सी के बाद उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी और कपड़े नहीं पहन पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन किलर की जरूरत पड़ सकती है, and otherwise it's a very minor procedure, and sometimes with only with the syringe and needle, but you can only with this needle also they can extract the sperm. So Dr. Sunil is an expert in that, in बट taking वगैरह नहीं लगाना पड़ता, बस निडल से आप बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर लेते हैं। इज इट सो? particular biopsies. So उस इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर लेते हैं आप, उसमें नेट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हो गया। absolutely इन एक्सपर्ट हैंड ऑफ कोर्स, right, absolutely. एंड जो फीमेल है उसी दिन आप एग और स्पर्म उसी दिन आप एम्ब्रियो के लिए डेवलप कराना शुरू कर देते हैं, और यू कीप इट फॉर फ्यू डेज एंड देन यू? नो, द वेरी सेम डे, जिस दिन एग लिए जाते हैं उसको ओवम पिकअप कहा जाता है। सो एक देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, इधर आईवीएफ होता है जिसमें एक एग लिया, उसके आसपास स्पर्म्स को वॉश करते हैं, स्पर्म्स सीमन सैंपल को, और वॉश स्पर्म्स में के बेस्ट स्पर्म्स उसके आसपास रख दिए जाते हैं, यानी कि एक एग के लिए 1 लाख स्पर्म्स पर एग। दिस इज आईवीएफ। और इक्सी विधि आईवीएफ की भी एडवांस्ड विधि है, जिसमें एक सिंगल एग के आसपास, सिंगल एग में इक्सी माइक्रोस्कोप पे, विच इज नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उसमें एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। सो दैट वी यूजुअली डू इक्सी procedure. बेस्ट स्पर्म लिए जाते हैं, हाउ यू डिसाइड व्हिच स्पर्म्स इन, दे आर सो माइन्यूट एंड यू डिसाइड हाउ which sperms are better, or even in for ICSI, how will you pick up the best sperm? How you people decide? Yeah, that is the expertise of the person in charge, the embryologist who chooses the sperms. Okay. And the best motile sperm is then chosen, and then it is injected inside the thing. So actually it's the embryologist who chooses, and उनके इतने expert हो जाते हैं वो लोग कि they can they can judge which is the best sperm. तो आपसे बात करके मुझे भी पता चला जिन लोगों के कम स्पर्म्स हैं या स्पर्म जिनके सीमेंस में आ ही नहीं रहे, वो लोग भी बायोलॉजिकली अपना जेनेटिकली अपना ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। आप Absolutely. 90% of the times this is possible. वेरी गुड, वेरी गुड। मैम आप ये बताइए, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ? या सी, आईवीएफ एक प्रोसेस है। So IVF is done over, a patient might get pregnant in the very first cycle. She might require 3 to 6 cycles. Normally 4 से 6 cycles ही, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। और cumulative success rate over the period of 4 to 6 cycles is very high, almost to the tune of 75 to 80%. एक cycle का success rate is almost 40 to 45%. Okay. So IVF is the best chance for a woman to get pregnant. इससे ऊपर, इक्सी विधि से ऊपर, so the success rate is the highest among all ART procedures. Okay, wonderful. Interconnect. अच्छा, जैसा कि आजकल डॉक्टर अंशु बड़ा कॉमन देखा जा रहा है, जो यंग कपल्स हैं वो शुरू के 1-2 साल जब वो थोड़े छोटे भी होते हैं तब वो बेबी प्लान नहीं करते, और जब वो 2-3 साल बाद बेबी प्लान करना चाहते हैं तो उनको बेबी, मतलब वो लेडी कंसीव नहीं करती है। Right. हाँ. For it, and how can that be sorted out? Are they candidate for IVF? No. And which includes ovarian reserve test of the woman, उसके ovaries ट्यूब्स कैसी हैं, एंड एग फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कैसी है, उसकी यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सो सब चीजों का पहले टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे ही अगर ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं, दोनों ट्यूब बंद हो गई हैं किसी कारण से, ट्यूबरकुलोसिस के कारण से, या फिर सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि काउंट इज लेस देन 5 million per ml, इस सूरत में they are straight away taken up for IVF. Then we don't think about it.
Otherwise, before that, there are other treatments which are offered to the patient, like अगर block tubes आती हैं, तो उन्हें लैप्रोस्कोपी से खोला भी जा सकता है. Endometritis को हम rule out कर सकते हैं by taking a biopsy, and we can look after the infection. So पहले पूरा workup के बाद ही हम line of management decide करते हैं. It is not that every patient is coming to us and we are doing IVF for them. And एक patient, एक और category of patient होता है जिनका unexplained infertility होता है, जिसमें सारे factors जो मोटे तौर पे semen analysis normal है, egg ठीक बन रहे हैं, and उनका endometrial lining ठीक है. उस केस में unexplained infertility में we can take these patients up for IVF if they are willing. They can go for other treatments like 3 cycles of intrauterine insemination, but if that fails, then they can take up IVF. Basically, आजकल IVF की acceptance बढ़ गई है. So lot of patients opt for IVF कि हमें जल्दी बच्चा चाहिए, हमें time to pregnancy जल्दी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी pregnancy conceive हो जाए. Or if her age is more than 35 years, in that case, her ovarian जो function होता है, her ovarian reserves होते हैं, यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया होती है, वो कमजोर होने लगती है. उस स्थिति में हमें, अगर पेशेंट विलिंग है, तो फिर हम उनको जल्दी ही after cycles of intrauterine insemination, we can take them for IVF, or we can take them for IVF straight away. So we explain the whole procedure to them. We explain all the various options they have, and they have to choose which option they want to take up. So it's not straight away IVF for any patient. Okay. एक चीज आपने अब जो जैसा कि ट्रेन आ रहा है, जितनी हमारे एजुकेटेड लड़की हैं जिनकी जो थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड है, उनकी शादी भी लेट हो रही है, तो क्या उनके लिए कोई और मेथड भी कि उनके एग्स फ्रोजन कर लिए जाएं और बाद में जब भी उन्हें कंसीव करना हो तो वो एग, अगर सपोज उनकी एज निकल भी गई है, तो वो एग यूज कर सकते हैं? कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं आपके? हाँ, सोशल एग फ्रीजिंग इज वेरी ट्रेंडी nowadays, especially women with working women who are career oriented, who don't have time for this, or late ages, or they're not finding a right partner at the right age, especially after the age of 35. That is when the ovarian reserve start declining with age, यानी कि ओवरीज में अंडा बनने की प्रक्रिया कमजोर होनी शुरू हो जाती है. तो ऐसी स्थिति में they are they can go for social egg freezing, which means they can get their eggs frozen, and then later in life, when they get married and they have a partner, they can go for the same eggs. Those frozen eggs can be utilized by a technique of IVF again to give them a pregnancy. So definitely, with the rising complexities in society, this is getting more and more acceptance nowadays. Okay. जो लड़कियां जिनकी शादी लेट हो रही है या अभी फिक्स नहीं हुई है, जैसे 30 इयर्स की हैं या 28, राइट, तो क्या आप उन लोगों को भी सजेस्ट करना चाहेंगी एज ए, जो जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, कि आप अपने सोशल एग फ्रीजिंग करा लीजिए, कभी भी शादी होगी तब आपके एग्स जो हैं थोड़ा बेटर क्वालिटी के ही रहेंगे और यू विल हैव अ नॉर्मल चाइल्ड इन टाइम टू कम? Will you suggest that, or it is still taboo? Yeah, normally, theoretically, yes, but normally, from my point of view, egg freezing should be offered, but it should not be offered absolutely कि सबको ऑफर हम कर रहे हैं, because egg freezing के अपने भी नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं. क्योंकि एग फ्रीजिंग मींस जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी करना चाहोगे तो आपको अगेन आईवीएफ का ही सहारा लेना होगा, एंड आईवीएफ इज नॉट 100% सक्सेस. सो पेशेंट हैज टू गो थ्रू एटलीस्ट, अगेन जैसे हम नॉर्मल पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 3 से 4 साइकिल्स लग सकती हैं. सो इट मींस एन एडेड एक्सपेंडिचर टू द पेशेंट. सो एग फ्रीजिंग इज नॉट द नॉर्म कि आप 30 इयर्स की एज में हो रहे हैं, लेट्स रिजर्व योर एग्स. Because this is also, you are going against nature first of all, and it involves a lot of expense, because egg freezing is not that inexpensive. So one has to weigh the pros and the cons before one can offer it to all patients. So it can be offered in select groups, not in all patients, according to me. How long can you freeze this egg? How long? How many years you can freeze?
You can freeze it for as long as you want. You have to keep changing the media in which it is frozen. Liquid nitrogen में freeze किया जा सकता है. It can be frozen for a very long time, but patient has to bear the expenses every year for the. Yes. तो आपने बताया कि एग कितने भी समय के लिए फ्रीज करा जा सकता है, बट इसकी रिकरिंग कॉस्ट है, हर साल आपको Recurring cost. That's true. हाँ. कंपनी को देनी पड़ेगी. राइट. Right. कभी आपने एक नया सा वर्ड बोला IUI. Yeah. Intrauterine insemination. ये क्या है? 3 साइकिल देना है, इसका क्या सक्सेस रेट है, और किन लोगों को आप ये सजेस्ट करती हैं IUI? हाँ, IUI IVF से कम तक असिस्टेड रिप्रोडक्शन की पहले वाली वो है, प्रक्रिया है. इसमें इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक. व्हाट वी डू इज एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड द वुमेन्स बॉडी. अंडों को तैयार किया जाता है. उसको तैयार करने के लिए ईदर वी गिव इंजेक्शंस व्हिच गिव्स अस बेटर रिजल्ट्स, या फिर हम अंडा बनने के गोलियां देते हैं. इस उसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि एग फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग कैसे बढ़ रही है. एंड वी कीप गिविंग द इंजेक्शंस. नॉर्मली 10 इंजेक्शंस आर गिवन फ्रॉम day 3 till day 12, day 13, till we get a good egg. When the egg reaches a diameter of 18 to 20 millimeters, then we give the injection for ovulation, which is separate from this injection of HMG. ये तो होता है HMG इंजेक्शन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शन, और रप्चर का इंजेक्शन होता है HCG इंजेक्शन, जिससे एग रिलीज होता है और एग रिलीज होके नलों में आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है. सो आफ्टर 36 hours we do an intrauterine insemination. We ask the husband to give us a sample in our lab. We wash the semen. It takes around 1 to 1.5 hours. We take out the best sperms in an aliquot of 2.5 ml only. And these active sperms, which are actually 100% active, are then transferred inside the uterine cavity by a special IUI catheter. So this is the gametes are and the fusion, the fertilization is happening inside the woman's body. It's not happening outside in the lab. Whereas in IVF and ICSI, the fertilization of both the gametes, the sperms and the eggs, is happening in the lab. Whereas in this case, it is happening in the woman's body. And after that, we give some hormones to support the uterus lining so that fertilization के बाद की प्रक्रिया implantation हो सके. But this activity of IUI requires at least one tube should be open. Otherwise, it will not traverse, the egg will not traverse the tube. So at least we should have, the patient should be ovulating, the tubes should be patent, and husband's sperm count should at least be 10 million per ml. And 50% of the motility should be there to call it a good candidate for IUI. तो अगर ये सब क्राइटेरिया पेशेंट मीट कर पाता है तो ये इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की विधि हम ट्राई कर सकते हैं. इसके भी अच्छे परिणाम हैं, नॉट एज गुड एज IVF, बट वी गेट अ सक्सेस रेट ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 22%, whereas if they were to try naturally, the chances were only 8 to 12%. So this improves the chances of pregnancy merely by increasing the quality of eggs by giving injections and by doing an IUI. So this is a technique which is actually very rewarding, and क्योंकि इसका खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, it almost costs just 5,000 to 6,000 rupees. So a lot of patients opt for this, and it has good results, but not as good as IVF. So I'm a little confused. You have told naturally if the chances of conception is around 8 to 10%, that 8 to 12%, yeah. Why it is so? Because if they are doing naturally, they are almost doing the same thing what you are doing through IUI. जो आप IUI से कर रहे हैं वही naturally भी हो रहा है. नहीं, नेचुरली जो हो रहा है, एक क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं है, उन्हीं पेशेंट्स को IUI की जरूरत होती है. जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसमें हमें कोई कारण नजर नहीं आ रहा, उसमें हमने देखा कि एक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करें? वी हैव ओनली फ्यू मीन्स टू डू इट. ईदर हम मेडिसिन देते हैं, जैसे लेट्रोजोल होती है या क्लोमिफेन साइट्रेट होती है, जो 3rd डे से 5th डे तक 3rd डे से 5 डेज तक दी जाती है. बट बेटर रिजल्ट्स आर विद इंजेक्शंस व्हिच आर ह्यूमन menopausal gonadotropin injections which stimulate the ovaries to form a good egg.
सो IUI विधि हम उन्हीं पेशेंट्स में कर रहे हैं जिनको ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है. But they do not have any sperm related problem. Then why? No, IUI can be so IUI can be done for female factor. Okay. अगर है उसकी कम है काउंट या मोटिलिटी फैक्टर then you will select the good कम है. In that situation, the sperms, and in sperms को capacitated sperms कहते हैं. Capacitated नहीं, they have 100% motile sperms होते हैं. They are very very active sperms. So we are increasing the chances of fertilization of an egg जो fallopian tube में आएगा and putting the sperms, washed sperms inside the endometrial cavity so that they can fertilize. But the fertilization is happening in the woman's body, not outside, like in IVF. So this is a assisted reproduction की technique which is lesser than IVF technique. And cost effective also. Yes, and cost effective. But the injections are given in IVF are the same which you are giving in IUI. Yeah, the dose is different, the protocol is different. इसमें IUI में simple third day से शुरू करते हैं injections and we keep giving it till we get a good egg. Normally 10 injections लग जाते हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पेशेंट्स में 15 भी लग सकते हैं क्योंकि उनका हो सकता है 10 इंजेक्शंस में काम ना चले. आईवीएफ में 2 प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. एक लॉन्ग प्रोटोकॉल जो 28 दिन का शेड्यूल होता है और एक शॉर्ट प्रोटोकॉल जो सिर्फ 15 दिन का शेड्यूल होता है. तो उसमें प्रोटोकॉल ही अलग इस्तेमाल किए जाते हैं. उसमें 2 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं. उसमें पहले हम GnRH एगोनिस्ट इंजेक्शन देते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल में. ओवरीज को सप्रेस करके डाउन ले आते हैं, बिल्कुल उनको डाउन रेगुलेट कर देते हैं, यानी कि ओवरीज को बिल्कुल लेवल पे ले आते हैं. ओवरीज बिकम एब्सोल्युटली जैसे बोला शिथिल हो जाती हैं. उसके बाद वी स्टार्ट स्टिमुलेटिंग दीज ओवरीज. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोटोकॉल विच रिक्वायर्स 28 days cycle. The short protocol, which is nowadays more popular, which is also called the antagonist protocol, इसमें हम day 2 से शुरू करते हैं. पहले हम ब्लड टेस्ट करा के देख लेते हैं कि पेशेंट का ovaries are absolutely, they are not functioning, उनमें aberrant activity तो नहीं है, उनके hormone levels बिल्कुल stable हैं. Then we start stimulating and after 5 days we start the antagonist. Antagonist is started so that we get a good cohort of follicles, यानी कि खूब अच्छे हमें एक bunch of follicles मिल जाएं जिनको फिर हम antagonist. In IVF, we give either agonist in a long protocol or antagonist in the short protocol. Okay, वो 2 टाइप के इंजेक्शंस हैं. हाँ, इसमें IVF में 2 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं. IUI प्रक्रिया सिंपल है, इसमें सिर्फ HMG इंजेक्शन या Ma'am, can you hear us? Should I repeat it? Yeah, you should, because we could not. You were not audible. Oh, okay. अच्छा, I thought I was. Okay. मैं दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी. IUI का प्रोटोकॉल सिंपल होता है. इसमें सिर्फ एग बनने के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि 3rd डे से शुरू होते हैं. 10 इंजेक्शन लगते हैं ऑन एन एवरेज, और उसमें हम करना, वी डोंट वांट कि ओवरीज ओवर स्टिमुलेट कर जाएं, सो हमारी डोज ऑफ हार्मोन्स भी कम होती है. तो दिस इज अ सिंपल प्रोटोकॉल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का. आईवीएफ का प्रोटोकॉल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसमें 2 तरह के होते हैं. एक 28 दिन का आईवीएफ प्रोटोकॉल होता है और एक शॉर्ट प्रोटोकॉल 15 दिन का होता है. तो जो लंबा प्रोटोकॉल होता है इसमें 2 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं. एगोनिस्ट इंजेक्शन, जिसमें ओवरीज को पहले हम नीचे उनकी एक्टिविटी को नीचे लाते हैं, जो डेली स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है. और एक बारी 14 दिन बाद फिर हम स्टिमुलेशन शुरू करते हैं HMG की डोज से. थोड़ी सी डोज हाई होती है आईवीएफ में, और हमारा एम होता है टू गेट एटलीस्ट 10 to 15 eggs per patient so that we can get 3 good embryos for IVF. We can transfer these embryos, और एक्स्ट्रा embryos जो होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, क्रायो फ्रीज कर लेते हैं विट्रिफिकेशन प्रोसेस से,
और बाद में हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल कर सकते हैं. सो द पेशेंट, अगर उसके एम्ब्रियोज फ्रीज हम करते हैं तो बार बार उसको स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. जो आईवीएफ का शॉर्ट प्रोटोकॉल होता है वो सिर्फ 15 दिन का होता है, जिसमें उसके सेकेंड डे से शुरू करते हैं पीरियड्स के, इंजेक्शन दिए जाते हैं और 5वें दिन एंटागनिस्ट इंजेक्शन दिया जाता है जो एलएच हार्मोन को कम करता है. वो उसके नॉर्मली 3 से 5 इंजेक्शन लगते हैं. इसमें भी हमें एटलीस्ट अ कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल यानी कि बंच ऑफ फॉलिकल मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 to 12. इनको फिर ओवम पिकअप से हम पिकअप कर लेते हैं और फिर सारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बाहर लैब में होता है. सो आईवीएफ का प्रोटोकॉल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का प्रोटोकॉल. अच्छी बात आपने बताई कि एक साइकिल, जो पहली साइकिल में ही आप ओवरीज को और यूट्रस को इस तरह तैयार कर लेते हैं और आप ओवम पिकअप कर लेते हैं और उनको फ्रीज कर लेते हैं. राइट. अगर वो साइकिल, क्योंकि 40% चांस ही है कि उस साइकिल में हम कामयाब होंगे, देन यू कैन यूज दैट एग इनटू द. ये फिर जो पेशेंट को या लड़की को वो पूरे प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ेगा. हाँ, एब्सोल्युटली. नो इंजेक्शन, नथिंग. हाँ, नो इंजेक्शंस. बस वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर हर एंडोमेट्रियम टू रिसीव दोज एम्ब्रियोज, बिकॉज एक नॉर्मल and we can't transfer it just like that. We have to prepare the endometrium to that level where she will be able to take those frozen embryos we have with us in the lab. Right. So that is less of injections. That's not very difficult protocol. Very good. So उसको बोलते हैं frozen embryo transfer, FET. एम्ब्रियो ट्रांसफर. हाँ. बहुत अच्छी बात बताई आपने. और ये आपके काउंसलर सबको समझाते हैं जो पेशेंट आपके पास आते हैं, उन लोगों को पता. एब्सोल्युटली पूरी चीजें समझानी होती है, समझानी पड़ती हैं. आईवीएफ जब शुरू होता है, आज ही हमारा आईवीएफ का बैच शुरू हुआ है, तो आई थिंक फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून यही प्रक्रिया चलती रहती है हर पेशेंट को कि आपके लिए हम ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, एंड द होल पूरा उनको टाइम टेबल समझाया जाता है, टाइमलाइन बताई जाती है, एंड पूरा समझाया जाता है कि कब पिकअप होगा, कब एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, कब बीटा एचसीजी कराया जाएगा, उसके 14 दिन बाद बीटा एचसीजी कराया जाएगा. तो पेशेंट्स आर वेरी वेल अवेयर. एंड कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल के लिए हैं, तो उनको सिर्फ प्रिपरेशन के टैबलेट्स दी जाती हैं. ओके. एंड यू वाचिंग देम थ्रू अल्ट्रासाउंड. सो हाउ मेनी टाइम्स एब्सोल्युटली. हाँ, बार आपके पास उनको इस साइकिल के दौरान आना पड़ता है? या प्रोटोकॉल और शॉर्ट प्रोटोकॉल उन्हें डेली आना होता है कि डॉक्टर के पास, या हफ्ते में एक बार, या नहीं, उनको ऑलमोस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए 5 बार आना पड़ता है. जिस दिन हम डाउन रेगुलेशन शुरू करते हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल में, उस दिन एक अल्ट्रासाउंड करते हैं. उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं पेशेंट के, उसके बाद हम सेकंड या थर्ड डे पीरियड्स के उसके एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शन देने शुरू करते हैं, तब अल्ट्रासाउंड किया जाता है. फिर 5 दिन के इंजेक्शन के बाद 6th डे फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और 2 अल्ट्रासाउंड बाद में किए जाते हैं और भी किए जाते हैं टिल वी गेट अ गुड एग. सो ऑन एन एवरेज 5 अल्ट्रासाउंड्स पर आईवीएफ साइकिल आर डन. गुड. एंड ये जो इक्सी मेथड बताया आपने कि ये ज्यादा एडवांस मेथड है, इसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर डाल देते हैं, तो क्या एग की जो क्वालिटी है या एग की जो एक नेचुरल अपने आप में जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता? नहीं, नॉट एट ऑल. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एंड इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर. We don't disturb the egg at all. In fact, it is a boon for patients with severe male factor infertility, क्योंकि अगर उनकी काउंट लेस देन 5 million per ml है, तो इवन आईवीएफ कैन फेल, बिकॉज वो एक अंडे में स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता. सो इवन दैट प्रोसेस इज टेकन बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट. अ सिंगल एग इज टेकन एंड द एग इज स्टेबलाइज्ड ऑन अ माइक्रोस्कोप. The sperm is loaded. A single good sperm is selected by the embryologist. It is loaded on a loading catheter, and it is injected with so much of precision inside without disturbing the egg quality or without disturbing the anatomy of the egg. In fact, patients of IVF जिनका पहले IVF हुआ हो और उनका फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन हो, मतलब स्पर्म अंदर नहीं एंटर कर पाया है, फेल हो गया फर्टिलाइजेशन होना बिकॉज ऑफ सम, या तो एग की वॉल बहुत थिक है जिसको जोना कहा जाता है, थिक जोना है, तो उसमें भी इक्सी
intracytoplasmic sperm injection is the only answer. So this is absolutely safe. There are a lot of data on this, and it does not disturb the egg in any way. या कोई genetic changes ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसकी वजह से इसको कोई शक की निगाह से देखा जाए. अच्छा, ये मुझे एक चीज और समझनी है कि जितने आईवीएफ बेबी होते हैं वो जनरली ट्विन और ट्रिपलेट वगैरह होते हैं, जबकि ये तो आप बाहर से एम्ब्रियो रखते हैं, तो क्या आप काफी सारे एम्ब्रियो रख देते हैं उसके अंदर? एक्चुअली हमारा एम तो होता है 2 या मैक्सिमम 3 एम्ब्रियोज रखना. वी कैन इवन डू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल्सो, यानी कि सिर्फ हम एक एम्ब्रियो रखें, ये सब हमारे हाथ में होती है बात. बट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का एक ही ड्रॉबैक है कि प्रेगनेंसी की दर भी थोड़ी सी कम हो जाती है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर में. इसलिए ईदर वी कीप 2. अगर पेशेंट एजेड है, 35 से ज्यादा है, उसकी एग क्वालिटी हमें श्योर नहीं है कि कैसी होगी, हो सकता है उसके एग्स हमें जो जिससे हमने एम्ब्रियो बनाए हैं वो वीक हो एग्स, बिकॉज एज के साथ साथ एग्स में भी जेनेटिक डिफेक्ट्स आने का डर रहता है. तो ऐसे सिचुएशन मोर देन 35 इयर्स पेशेंट्स में हम उनको बता के कि हम आपके 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं ट्रांसफर किए जाते. बिकॉज जितने हम एम्ब्रियोज ट्रांसफर करेंगे उतना ही रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स या इवन मोर. सो ओनली 2 और 3. और अब ट्रेंड है कि इवन सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर या सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया जाए, विच इज जो हम ट्रांसफर करते हैं वो डे 2 या डे 3 ट्रांसफर होता है. डे 5 तक अगर हम ब्लास्टोसिस्ट तक एग को ले जाते हैं, फर्टिलाइज एग को ले जाते हैं, that is called day 5 blastocyst transfer. उसमें कई बार we just transfer actually one single blastocyst and not more. ओके, वो तो खैर आपके हाथ में ही हुआ ना. 5th डे जो लिटरेचर कहता है 5th डे वाला ट्रांसफर ज्यादा इफेक्टिव है, उसके जो रिजल्ट्स बेटर हैं, तो फिर आपके हाथ में ही है. 5th वो हमारे हाथ में होता है. हाँ, कोई क्राइटेरिया होता होगा कि कब 2nd डे 3rd डे करना है, कब 5th डे करना है? हाँ, एब्सोल्युटली. ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर सबके लिए नहीं है. ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर उन पेशेंट्स के लिए है जिनके बहुत सारे अंडे बने हैं, बहुत यंग पेशेंट हैं, अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं आईवीएफ में, ज्यादा अंडे बने हैं, तो उनमें हम कुछ अंडों को ब्लास्टोसिस्ट के लिए मतलब छोड़ सकते हैं, विद दिस होप कि हम एक मतलब कुछ एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच जाएंगे, उनमें से हम एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करेंगे और बाकियों को फ्रीज कर देंगे. मगर जिस पेशेंट के कम अंडे बने हैं, जिनको पुअर रिस्पॉन्डर्स कहते हैं, उनमें लेस देन 5 एम्ब्रियो समझ लो एग्स बने हैं, उनमें से 2 या 3 ही सिर्फ वो हैं एम्ब्रियोज बने हैं, उसमें ब्लास्टोसिस्ट में कई बार वो ट्रांसफर ही नहीं होते, वो कन्वर्ट ही नहीं होते ब्लास्टोसिस्ट में. जबकि डे 2 या डे 3 ट्रांसफर इज बेटर इन दीज पेशेंट्स, बिकॉज वो अंदर जब उनको एनवायरमेंट मिलेगा, यूट्राइन एनवायरमेंट सही मिलेगा, तो वो 2 या 3 जो बहुत कम एम्ब्रियोज बने हैं वो भी शायद पनप के अंदर only in very good IVF, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हो, तब we can go for blastocyst transfer. So we have to weigh the pros and cons, and with the embryologist बैठ के डिस्कशन होता है पूरा कि इसमें क्या करा जाएगा. ऐसे ये सिंगल पर्सन का डिसीजन नहीं होता. We have to, the whole team sits and decides which is the best for this patient, whether we should go for blastocyst or do day 2 or day 3 transfer. अब जैसा कि आजकल लोगों के यहाँ बहुत कम बच्चे हो गए हैं, किसी हाँ जी, and sometime some mishap has happened to them. yeah. 18 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया किसी भी रीजन से, right. किसी एक्सीडेंट में या किसी रीजन से, and now they can't conceive because हाँ, ये जो वो 40 प्लस हो गई है और 50 absolutely. very common in the society. Yeah. इनके लिए क्या अप्रोच है, इन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी, जिससे कि वो लोग उनके जीवन में दोबारा खुशी आ सके? हाँ. जो पहले लॉस हुआ है वो तो कभी कंप्लीट नहीं होगा. Right. थोड़ा डूबते को तिनके का सहारा बहुत है. What are the hopes for them, and how they should go about it, and how they should approach to the doctor? Yeah, I have lot of such patients coming to me with this kind of a history जैसे आपने बताया, and usually the woman is past 45 years, she has either stopped having her periods, menopausal हो चुकी हैं, या menopause की कगार पे हैं कि यानी कभी पीरियड आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं,
और जब उनके हार्मोन टेस्ट कराते हैं तो पाते हैं कि उनकी ओवरीज बिल्कुल एट्रोफिक हो गई हैं, ओवरीज काम नहीं कर रही। तो पहले उनको एक्सप्लेन करके डोनर एग, एक यंग डोनर का एग लेके, और अगर उनके हस्बैंड की काउंट ठीक है तो हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के और उन्हीं की बॉडी में वो एम्ब्रियो रखा जाता है। बट जेनेटिकली दैट एम्ब्रियो इज नॉट हर्स, बिकॉज उसका एग नहीं होता, उस पेशेंट का एग नहीं होता, बिकॉज आवर ओवरीज आर नाउ कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड, दे हैव गॉन इनटू फेलियर, ओवेरियन फेलियर हो चुका है, मेनोपॉज आ चुका है। एंड इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, इक्सी ओवम डोनेशन कहा जाता है इसको। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव गेन्ड फ्रॉम दिस प्रोसीजर। उनके लिए एक वरदान ही समझिए, बिकॉज जिसने सब कुछ अपना खो दिया है उसके लिए बस वो डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, समथिंग लाइक दैट। एंड आई हैव सो मेनी केसेस वेयर पेशेंट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोसीजर। एंड मैं हर पेशेंट को उनको समझाने के लिए यही उनको काउंसल करते हैं कि जब आप 9 महीने आपके वो गर्भ में रहेगा, वो आपका ही बन जाएगा। अब वो जब बॉर्न होगा तो वो आपकी जैसा ही, क्योंकि उसमें संस्कार तो आप ही देंगे, 9 महीने आप ही उसकी, आपका ब्लड ही उसको सींचेगा, तो आपका ही बन जाएगा। तो इस तरह से फिर वो अगर पेशेंट्स कंसेंट देते हैं, एंड बहुत सारे पेशेंट्स इसके लिए एग्रीबल हो जाते हैं जब उनको समझ आता है कि उनकी ओवरीज अब काम करनी बंद कर दी हैं, तो दे एग्री टू दिस प्रोसीजर। तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। तो आप इन लोगों का जिनको ओवेरियन फेलियर हो गई है उनका यूट्रस रेडी हो जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट? या एब्सोल्युटली उनको उसको रेडी करा जाता है पहले। हाँ, वो तो आप कुछ मेडिसिन दे हाँ, मेडिसिन देके पहले एक साइकिल में -1 साइकिल हम उसको बोलते हैं, -2 साइकिल पहले उनको देखते हैं उनका यूट्रस कैसे बिहेव कर रहा है। कभी भी आईवीएफ के लिए ऐसे पेशेंट्स को सीधे नहीं लेके लिया जाता, पहले उनको स्टडी किया जाता है कि उनका यूट्रस की लाइनिंग कैसे बिहेव कर रही है, हार्मोन्स देके, इंजेक्शंस देके, और फिर अगर हमें लगता है कि शी इज रिस्पॉन्सिव, एंड उनकी हिस्ट्रोस्कोपी होती है एक। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऑफ आईवीएफ से पहले यूट्रस में दूरबीन डाल के हम देखते हैं कि अंदर की लाइनिंग, अंदर का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई हमें आगे आईवीएफ के टाइम पे दिक्कत तो नहीं आएगी, डू हैव अ गुड एंडोमेट्रियल कैविटी इनसाइड। एक बार हिस्ट्रोस्कोपी में एक बार हम पूरा अपने आंखों से देख लेते हैं और बायोप्सी लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देन वी स्टार्ट स्टिमुलेटिंग दीज पेशेंट्स, see if they are responding well. If they are responding well in the -1 cycle, यानी कि IVF से पहले वाली साइकिल में, then they are offered IVF in the next cycle, and whoever consents can go ahead. And we have had a lot of series of pregnancy by such ways. इसका डॉक्टर अंशु, इसका कोई कट ऑफ एज है मदर का, लाइक 60 Yeah. ईयर 80 ईयर? No, not 80. It's now 50, maximum 55. Actually, it's just 50 now. कि मदर की एज 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट देयर आर रिस्क इन्वॉल्व्ड इन आईवीएफ प्रेगनेंसी एट द एज ऑफ 50. So the cutoff is nowadays considered as 50 years. So 50 years tak we can take up these patients for ovum donation cycles, and later than that usually it is not recommended. ओके। एंड जो ये बच्चे आईवीएफ से पैदा होते हैं, क्या ये दे आर एज गुड एज नॉर्मल बेबीज? और Yeah, absolutely, they're absolutely normal. In fact, उनके congenital defects या जन्मजात defects होने के chances भी सिर्फ मात्र में भी 1% ज्यादा होते हैं। और वो भी क्यों ज्यादा है? नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी 3 to 5% रिस्क होता है किसी भी जन्मजात डिफेक्ट होने का, इनमें सिर्फ 1% ज्यादा होता है। और वो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये पेशेंट्स ओल्ड होते हैं, इनके एग्स जो हम लेते हैं वो ओल्ड एग्स होते हैं। इन ओल्ड एग्स में, ओल्ड ओवम में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा जेनेटिक डिफेक्ट्स 1% ज्यादा बस होते हैं। अदरवाइज एक्चुअली दे आर लाइक दे आर एज नॉर्मल एज अ नॉर्मल पेशेंट। ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज जो बहुत सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है, जिसमें स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, 1 बिलियन या उससे भी कम है, उसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन एक तरह का जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, जिसका टेस्ट किया जाता है। वो अगर पाया जाता है कि इस पेशेंट में वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन है, डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट, वो डिफेक्ट अपने लड़के को पास ऑन कर सकता है थ्रू आईवीएफ।
वो उसकी संभावना होती है, 100% नहीं होती, बट उसमें संभावना होती है कि उसका जो बेटा बॉर्न होगा उसको भी थोड़ा मेल फैक्टर हो सकता है. That is the only thing that I would like to bring about. There is only 1% increase in the background risk of having a genetic defect with IVF. So नॉर्मली में भी तो जन्मजात डिफेक्ट्स होते हैं. और क्या है, नेचर का अपना तरीका है. जब नेचर डिफेक्ट्स देती है तो वो अबॉर्शन हो जाता है. वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्रेगनेंसी को नेचर हैज अ वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोस. तो वो अबॉर्शन की दर थोड़ी सी ज्यादा होती है आईवीएफ प्रेगनेंसीज में नॉर्मल के तरीके से, बट बैकग्राउंड रिस्क ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स इज ओनली 1% मोर, व्हिच इज नॉट मच. एंड व्हाट अबाउट द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी? लाइक ये बच्चे ना बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, जो कि हाँ इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं पेरेंट्स, फिर वो हाँ में रहते हैं और काफी उनका खर्चा होता है, थोड़े जल्दी पैदा हो जाते हैं. एक रीजन तो ये है कि कई बार वो ट्विन होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं, तो उसकी वजह से भी जल्दी लेबर शुरू. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्विन बच्चों में थोड़ा सा प्रीमेच्योरिटी का रिस्क ज्यादा होता है. ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योरिटी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका फीटल रिडक्शन करके ट्विन्स कर दिए जाते हैं. यानी कि वी डोंट लेट द प्रेगनेंसी बी ट्रिपलेट, उसको फीटल रिडक्शन से एक रिड्यूस कर दिया जाता है सो दैट ओनली 2 विल सर्वाइव. बिकॉज ट्रिपलेट्स का बहुत ज्यादा चांसेस है प्रीमेच्योरिटी के. But with good antenatal care, with good follow-up, because I follow up my own IVF pregnancies till term, most of them who are there, जो अब्रॉड होते हैं, बाहर के पेशेंट्स आते हैं या बाहर की सिटीज से आते हैं, उनका तो कभी कभार वो वहीं पे फॉलो अप करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर इन एंड अराउंड मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम देयर कमिंग फ्रॉम देयर, सो दे फॉलो अप विद मी. सो विद गुड काउंसलिंग, गुड उनको बिठा के काउंसिल करना, उनको डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना, उनको बेड रेस्ट कब जरूरत है कब जरूरत नहीं है, और उनका ब्लड प्रेशर चेक करना. दीज आईवीएफ प्रेगनेंसीज आर मोर प्रोन फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज एज वेल. सो हम बहुत ही, अगर हम सचेत रहें इनके साथ, उनकी इन्वेस्टिगेशन टाइम से होती रहें और उनको काउंसिल करते रहें कि लुक फॉर दीज साइंस, तो आई हैव सीन दैट माय पेशेंट्स डू क्वाइट वेल. आईवीएफ प्रेगनेंसीज आल्सो डू क्वाइट वेल. एंड इट्स अ फैक्ट दैट जो डोनेशन, इक्सी डोनेशन की प्रेगनेंसीज होती हैं, ओवम डोनेशन जो मैंने बात करी कि 45 के बाद जब एग बनने बंद हो जाते हैं, एक्चुअली दीज बेबीज आर लार्ज फॉर डेट्स. दैट इज व्हाट द लिटरेचर सेज कि यंग डोनर से जो एग लेते हैं वो बेबीज आर एक्चुअली लार्ज फॉर डेट, वो बड़े तगड़े बच्चे पैदा होते हैं. सो आपका कहना ठीक है कि तभी मल्टीपल प्रेगनेंसीज प्रेफर नहीं करी जाती. वी प्रेफर दैट पेशेंट्स हैव सिंगलटन प्रेगनेंसी. जब पेशेंट आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे डबल ट्विन प्रेगनेंसी चाहिए, तो मैं उनको यही बात कहती हूँ कि आप डबल की इच्छा मत करो, बिकॉज डबल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी भी आगे ले जाना, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की दर ज्यादा है. So you should only aim for only one pregnancies, but patients सोचते हैं एक ही बारी में सारा काम हो जाए, family complete हो जाए, and I don't have to come again and again for this expensive procedure. So they have their own, thoughts on that. Right. And दीपमान, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर अंशु से? Thank you so much, ma'am. I have a few, not questions, rather I would like to understand. Yeah. No, and we do have few questions in the Q&A section, which we will take it up. Right. Now, this is a journey, right? It's a journey. IVF is a process. It's a process, and a psychologically and emotionally very challenging. Very challenging. It's a very stressful time before, like the pre-pregnancy, during the pregnancy, and after that as well. Absolutely. Now. And there is different chronic source of stress, right, which can definitely disturb the mother, the family, the environment, the stress, right? And such daily injections, as you have been referring, or maybe right, treatment regimen, ultrasound, blood for different tests and all. Now the possibility even of failure, which nobody can rule out. Predict, yeah. And the various phases of their life of this procedure. Now, stress. Do you also take care, like the mother who is planning for this kind of pregnancy, they should also carry a good state of mind,
Absolutely. That is very much taken care of during the entire IVF process. We have a clinical psychologist with us who deals with all these problems. And moreover, these patients are under stress that they will not get pregnant ever. So when they see light at the end of the tunnel, उनको लगता है कि कुछ किरण है, hope की किरण है, तो उसको वो एकदम पकड़ लेते हैं, उसको एकदम they are just cling to it. उनको तो प्रेगनेंसी से मतलब है, उन्हें एक सिंसियर वहां पे एक टीम दिख रही है जो आप उनकी मदद करने को तैयार है. So lot of patients, by merely seeing the confidence in us, get that support, the moral support, that maybe एक cycle fail भी हो गई है, we give in fact more importance to our patients who fail, because we know they are going through a lot of stress, to assure them that this is a process, just keep going through it. Some patients get pregnant in the second cycle, some get in the third cycle, but I always tell them that at the end of it, 80% of the patients will be pregnant by 4 to 5 cycles or 6 cycles. Up to 6 cycles we have done. We don't offer more than that. So they get so, उनको हमेशा संभालना पड़ता मिलेगा. कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो यहीं पे हो जाएगा, so that अंदर से उनके एक and the more stress free they are, the better would be our results with IVF. I've seen that also. Thank you so much, ma'am. I think this is what the female who are planning, they should also take care, because hormone ultimately makes and impact both the mother and the child to be. Yeah. One thing that the year 2020 has made us all realize is that nature and science both are constantly evolving. Like we have seen Corona, we have seen COVID, and if we talk of IVF, we have come a long distance, but yet there is a lot to go, lot to improvise. And in the words of the famous poet Robert Frost, right, the woods are lovely, dark and deep, Huh. but I have promises to keep, and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Absolutely. Thank you very much, Dr. Anshu. Yeah. And very much to all the audience for patient listening. And see you. Dr. Anuj, there are few mothers who are keen, or ladies who are keen to get some answer. So if you can pass on the question to Dr. Anshu, or let me take it forward. Yeah, sure. You please carry on. Okay, Dr. Anshu, there are a couple of questions. Yeah. Now, a 35-year-old woman got married this year. I have endometriosis with bicornuate uterus. How many chances do I have to get pregnant? What if I go for IVF? Endometriosis, can you repeat the first part? She has endometriosis of the uterus? Bicornuate uterus. And the bicornuate uterus. Okay. So the bicornuate uterus needs to be looked into. Bicornuate uterus could be because of a uterine septum in between the uterine cavity. So septum हमें हटाना पड़ता है. We remove it by hysteroscopic septal ablation. We have to remove the septum. And this is a very easy operation, very rewarding operation. So endometriosis भी septum की वजह से बन सकता है. So we have to take care of both the things which we do pre IVF laparoscopy, hysteroscopy द्वारा. तो हम पहले IVF से पहले एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसका ट्रीट किया जाता है. बाद ऐसे पेशेंट्स को IVF दिया जा सकता है विद गुड रिजल्ट्स. So IVF, वही मैं आपको बता रही थी ना कि you have to prepare the patient for IVF. Not everybody की patient आया और IVF शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता. We have to prepare. We have to, अगर उनके फाइब्रॉइड्स हैं तो वो हमें निकालने पड़ते हैं. सेप्टम है तो उसे हटाना पड़ता है. अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको ठीक करना पड़ता है. तो all the problems associated with the uterus, tubes and ovaries are first taken care of before we give them a signal for IVF. Right. I think, Maria, that's a beautiful response from Dr. Anshu to you.
There is one more question from Nimisha. She is asking, ma'am, while transferring the embryo, can we select the healthy embryo? Are all embryos same in quantity? Yeah, we select the best embryos with embryologists. So you don't choose those, we choose it for you. So lab में assessment किया जाता है, and there is a grading of embryos, grade 1, grade A, grade B, grade C. So grade A embryos are the best embryos. So only कोशिश की जाती है, only grade A are transferred. Abnormal embryos are never transferred, they are rejected right away. So that is the यही तो एक सेंटर का अपना वो होता है कि कैसे उसकी टीम काम कर रही है to give you the best results. Okay, now there is a general query whether is there any kit available which can help them to do the test at home for semen analysis? No. This is a very detailed procedure. It's called हमारे यहाँ पे semen SQA and culture survival. So there's no kit to know. I think that the kit that is available in the market will give you some idea about the count or something like that. But this is all is very, advanced work. And if you are going for IVF or even for IUI, you need to be at an infertility center for all the details that go into it. So you cannot do it at home. It is not that simple. Right. Not recommended at all. Thank you so much, Dr. Anshu and Dr. Anuj sir, and the attendees today. So we are definitely going to take, if you have any specific question to Dr. Anshu, please do post on the Facebook channel of I'm the Best Mom. We would like to get back you with the answers. Thank you once again, Dr. Anshu, for sparing your time, and Dr. Anuj sir. Many times we do not know what could be the right perspective to understand the real challenges when we are interacting with our doctor. But when a doctor asks another expert, we get the right kind of answer. Absolutely. The Best Mom works, and we will continue bringing those answers to you. And thank you so much once again. Thank you so much. Wonderful session. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you, Dr. Anuj.